اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیریئر گروپ آف کالجز کے پروگرام لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام محمد سعید انجم ہے اور ہیڈ آفس سے میرا تعلق ہے۔ آج ہمارا موضوع درخواست ہوگا۔ یہ پرچہ سال اول کا سوال نمبر 7 ہے، جس کے کل نمبر 10 ہیں۔ اب پرچے کے اندر دو چیزیں ہیں، یا درخواست آئے گی یا رسید آئے گی۔ یہ پیپر بنانے والے پر ہے کہ وہ درخواست دیتا ہے یا رسید دیتا ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ گفتگو کا وہ درخواست ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ درخواست میں سب سے پہلے تخاطب، یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج ضلع ڈیش ڈیش، تو یہ تخاطب ہے جس کا نمبر 1 ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر عنوان ہے درخواست برائے فیس معافی، جس کا نمبر 1 ہے، اور تیسرے نمبر پر جناب عالی، جس کا نمبر 1 ہے۔ تو یہ حصہ اول ہے جس کے ٹوٹل 3 نمبر ہیں۔ اب درمیانی حصہ نفس مضمون، اس کے کل 5 نمبر ہیں، اور اس کے نیچے تیسرا حصہ جو درخواست کا ہے اس میں تاریخ کا 1 نمبر ہے، العارض اور آپ کا شاگرد علی بے جیم کا 1 نمبر ہے۔ تو جو آخری حصہ ہے اس کے 2 نمبر ہیں، اور درخواست جو ہے بالکل العارض کے جو سامنے تاریخ لکھی جائے گی، اور اختتامی لفظ بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ العارض آپ کا شاگرد اور علی بے جیم۔ اب بات کرتے ہیں کہ تخاطب کیا ہے۔ تخاطب، طرز تخاطب کہتے ہیں کسی کو مخاطب کرنا، اور اس کے لیے یہ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج ضلع ڈیش ڈیش ڈیش، یہ جہاں ڈیش ڈیش ہے وہاں پر آپ علی بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب بخدمت جناب پرنسپل یہ ایک عہدہ ہے، اور گورنمنٹ کالج ایک ادارہ ہے۔ یہ آپ اگر اپنے کالج کے معاملات میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کالج کے ادارے کا جو بڑا عہدیدار ہے پرنسپل، اس کو لکھنا ہوگا۔ اب اس میں ایک جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طالب علم جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، دونوں کا لکھنا۔ ایک لکھنا چاہیے، یا تو لکھیں جناب پرنسپل یا لکھیں پرنسپل صاحب۔ اس لیے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، جناب لکھیں یا صاحب لکھیں۔ اب اس کے بعد اگلا ایک اور آپ کو مثال دی جا رہی ہے، باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر جی پی او ضلع ڈیش ڈیش، یعنی کہ پوسٹ ماسٹر یہ ایک عہدہ ہے، جی پی او ادارہ ہے، جنرل پوسٹ آفس، اور ضلع ڈیش ڈیش جو بھی آپ۔ اس کے بعد باخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ گلشن قائد ضلع۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی آپ کو دوسرے معاملات، کو کرمنل معاملات ہیں، کوئی جرائم سے متعلق مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کی اپنے ذاتی مسائل ہیں، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو پولیس کی مدد درکار ہے تو اس میں آپ تھانے کے ایس ایچ او کے نام، ایس ایچ او ایک عہدہ ہے تو آپ اس کو لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو ضلع ہے یعنی کہ تھانہ گلشن، یہ پورا اس کا نام ہے، اس کے عہدے دار ایس ایچ او کے نام لکھ کے آپ اپنا درخواست جو ہے وہ دے دیں گے۔ اب اس کے بعد
नंबर 2 पर अनवान की बारी आती है। तो अनवान में ये आपको एक सुर्ख बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ये लिखने का अंदाज गलत है। अब इसमें गलतियां क्या हैं? अनवान लिखा, आगे राब्ता की अलामत लगाई और उसको अगली लाइन पे जाके लिख दिया, ये गलत है। अब दूसरे में गलती क्या है कि अनवान लिखा और उसके आगे आपको राब्ते की अलामत देनी थी, आपने तफसीलिया की वजाहत की अलामत लगा दी और ये भी गलत हो गया। अब जो ठीक लिखा हुआ है वो जिसको सबस से टिक किया गया है, सबस के साथ बताया गया है कि दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, और नीचे लिखा है फिर अनवान फीस माफ़ी और अनवान फीस माफ़ी की दरख्वास्त, ये ठीक है, ये दुरुस्त है। अब इसके बाद एक और बात इसके अंदर कि हम बराए की जगह बरा लिख देते हैं और वो भी गलत है। अब उसके बाद अगली, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये अनवान के सामने जो जो दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको, इसको राब्ता की अलामत कहते हैं। नीचे अनवान के सामने जो दो नुक्ते और आगे छोटी सी लाइन लगी हुई है, तफसीलिया की वजाहत की अलामत है। ये इसके साथ आपको नंबर तो मिल जाएं, लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर पेपर चेक करने मुमतहिन के ऊपर आपको जो है उसका ज़्यादा अच्छा आपका असर ना पड़े, इसलिए इससे वो इस तरह लिखना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगा। अब जो ठीक लिखा हुआ है वो आपको सबस के साथ टिक किया गया है, इसको गौर से देखें। यानी पहला अनवान और आपका की अलामत दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, नीचे फिर एक है अनवान राब्ता की अलामत, ये जो दो नुक्ते हैं फ़ीस माफ़ी, और अनवान राब्ता की अलामत दो नुक्ते फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा जुज़ है जनाब आली। अब ये जितने लिखे हुए हैं जनाब आली, जनाब आलिया, जनाब आला और जनाब आला, अब इनकी शक्लें और इनके लिखने के अंदाज, जैसा कि ये सुर्ख क्रॉस किया गया कि ये सारे गलत हैं, इसलिए ये नहीं लिखने आपने। ना ही आपने ख़ास तौर पे एक और है, वो जनाबा आलिया भी नहीं लिखना। अगर मेल है, फीमेल है, तो आपने जनाब आली ही लिखना है। ये जो आपको सब्ज़ रंग का टिक करके बताया गया है, ये जनाब आली ठीक है, आपने इसको इसी तरह ही लिखना है। अब इसके आगे चलते हैं नफ्स मज़मून की तरफ। तो आप सबसे पहले जो है नफ्स मज़मून में तारुफ या आप तमहीदी कलमा लिखेंगे, अपना तारुफ कराएंगे। अब तमहीदी कलमा लिखने में हम लिखते हैं कि नहायत अदब से गुजारिश है, नहायत अदब से अल्तमास है, मुअद्दबाना गुजारिश है। अब इसमें जो गलती हो रही होती है, मुअद्दबाना का हमज़ा नहीं डालते, तब गलत हो जाता है। या हम ये कर देते हैं गुजारिश का जे की जगह हम जाल डाल देते हैं, तो मानी उसके यक्सर ही बदल जाते हैं। तो इसलिए हमें ये एहतियात करनी होगी कि हम इमला की गलतियां जो हैं वो ना करें, ताकि हमारे नंबर जो हैं वो ना कटें और मुमतहन पर असर हमारा अच्छा ही पड़ता रहे। तो हमने अपना तारफ़ लिखा, फिर हम असल मौजू की तरफ आते हैं। तो असल मौजू जो लिखा गया है उसके एक पैराग्राफ बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, और पैराग्राफ जो है वो 8 से 9 लाइनों में बनाएं या उसे कम बना लें। 3 पैराग्राफ आपने बनाने हैं और आपने उसको कोशिश करें, ये जो दरख्वास्त आप लिख रहे हैं, एक तो इसको नए पेज से लिखें, नए सफ़े के आगाज़ से लिखें और फिर इसको एक सफ़े पर मुकम्मल करने की कोशिश करें, ताकि ये जो है वो अच्छा असर पड़े। अब बात हम करते हैं कि जो आपने पेश की शुक्रिया लिखना है, अब उसमें आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे कि आपकी नवाज़िश होगी, लिख सकते हैं, आपकी
बेहद नवाजिश होगी, ये लिख सकते हैं। मैं आपका इंतहाई ममनून हूँगा, ये लिख सकते हैं। मैं ताहियात आपका शुक्रगुजार रहूँगा, ये लिख सकते हैं। या मेहरबानी फरमाकर ये लिख दें, जो आपका हो, आपको अच्छा लगे कि ये दरख्वास्त देने वाले पर ज़्यादा अच्छा असर डालेगा, तो उसको आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम जो आते हैं जहाँ पे ज़्यादा गलत लिखा जा सकता है, तारीख़ का जो मसला है उसके ऊपर आते हैं। तारीख़ तो तारीख़ हमने अल आरज़ के बिल्कुल उसी लाइन में लिखना है, लिखना दाएं तरफ है। अल आरज़ आएगा बाईं तरफ और तारीख़ आएगी दाईं तरफ। अब ये जो आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन है, एक जो है वो सुर्ख है। तो ग्रीन में जितनी तारीख लिखी गई हैं ये सब दुरुस्त है, और जो आपको सुर्ख बॉक्स के अंदर नज़र आ रही हैं ये सारी गलत हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले में आपने 25 लिखा और आगे उसके 2 लिख दिया, हालांकि आपने इसको लफ्ज़ों में लिखना था और हरूफ में लिखना था, वो नहीं लिखा गया, जिसके मुकाबल आप देख रहे हैं कि सबस बॉक्स में ये तारीख लिखी हुई है, जैसा कि 25 जून 2021 लिखा हुआ है, और उसके मद्दे मुकाबल जो लिखी है वो गलत है। उसके बाद आपने एक और लिखी 25/6/2021, तो इसको जो है वो सही लिखने का तरीका ये था कि आप लिख दे 25 जून 2021 और हमज़ा लाजमी डालना है, इसके बगैर भी गलत ही होगा। और फिर उसके बाद 25 जून 2021 आपने अंग्रेज़ी और उर्दू को मिलाकर लिख दिया है। 25 को उर्दू का जो डिजिट है उसमें लिख दिया है, फिर जून लिख दिया, फिर 2021 लिख दिया। नहीं, आधा तीतर आधा बटेर काम नहीं करना। या आप उर्दू के लिखें या आप इंग्लिश के सारे लिखें। जैसा कि आपके दाईं तरफ सब्ज़ बॉक्स में 11 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से आप कोशिश करनी है कि दरख्वास्त आपकी जो है वो तारीख इसी तरह दरख्वास्त में लिखी जाए। अब हम आते हैं इख्तिताम की तरफ। नंबर 6 पर अल आरज़ और नीचे अलिफ जीम या दरख्वास्त गुज़ार लिखें। यहाँ पर भी एक छोटा मसला ये हो जाता है, दरख्वास्त गुज़ार ज़ाल से लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये ज़े से ही लिखा जाएगा, और ये नहीं लिखना कि दरख्वास्त गुज़ार भी लिख दें, अल आरज़ भी लिख दें और नीचे जाकर अलिफ जीम भी लिख दें। तो ऐसा नहीं करना, जो सब्ज़ बॉक्स में लिखा हुआ है यही दुरुस्त है, और इसी को आपने लिखना है इसी तरीके से। ये हमारी दरख्वास्त थी, और हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।